Okay, everyone. Last time what we discussed was pronouns. ठीक है? Pronouns में हमने yeah, please settle down, settle down. Pronouns में हमने basic pronouns किए. Then we did some types of pronouns, and there are some pronouns which are remaining. Others we have already done. Some are remaining. So which we'll pick today. Hmm. ठीक है? One of the pronouns now that is remaining is called indefinite pronoun. Now, indefinite pronoun means that you're talking of a pronoun in general. In general, not particular. So, matlab when noun is not known, jab noun for which the pronoun is being used is indefinite. It's not known. You cannot say what the noun is. So, it's pronoun used in general. Suppose I say, someone left my bag, someone left his bag on my desk. Someone. Anyone can solve this simple problem. No one came to his rescue. One should take care of one's responsibilities. Okay, so suppose we have someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, one. So this is talking of people in general. So suppose आप कहते हैं someone has left his bag on my desk. Who is this someone? ये तो कोई भी हो सकता है. It's not known who this someone is. हम कहते हैं यार ये प्रॉब्लम इतनी इतनी सिंपल है, इसको कोई भी कुछ सॉल्व कर सकता है. कोई भी मतलब anyone can solve this simple problem. Who is this anyone? कोई भी हो सकता है. Anyone, anything, anybody. You know? No one came to his rescue. Nobody came to his rescue. No one could have been anyone. No one तो कोई भी हो सकता था. One should take care of one's responsibilities. One should not lie. One should speak the truth. One should not fight. One should do this. One should not do that. So ये one किसके लिए? सबके लिए या किसी के लिए. So इनका noun is not definite. So they are called indefinite pronouns. They are pronouns that are used in general. ठीक है. Now one thing you will notice here, one के साथ मैंने क्या लगाया? Once. और someone के साथ मैंने क्या लगाया? Is. Now you see the difference. That's very important. Someone हो, anyone हो, no one हो, या somebody हो, anybody हो, इनके साथ आप his या her लगा सकते हैं, लेकिन one as an indefinite pronoun के साथ आपने one ही लगा. One के साथ his her नहीं आएगा, one के साथ one ही आएगा, और one किसी और के साथ नहीं आएगा. One किसी और के साथ नहीं आएगा, one के साथ कोई और नहीं आएगा. One, one self, तो one के साथ one ही आएगा. Indefinite pronoun one. Are you getting this? तो ये ध्यान में रहे ना. हाँ, पोजेसिव है ना. वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और पोजेसिव में इधर देखो, पर्सनल प्रोनाउन हमने किया. पर्सनल प्रोनाउन में आप पोजेसिव में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते. योर्स, हर्स, देयर्स. लेकिन इसमें अच्छा ईच अदर में लगाते हो. ईच अदर एपोस्ट्रोफी इज वन अदर एपोस्ट्रोफी. यहाँ पे भी आप लगाते हो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. या आप कहोगे समवन. दिस मस्ट बी समवन्स एपोस्ट्रोफी, इज समवन्स आइडिया. समवन्स आइडिया. या
no one's business. This is no one's business. क्या लगा रहे हैं आप? Apostrophe s. यानी इन सब के साथ आप possessive केस में जब आप इसके साथ possession देते हैं तो apostrophe s लगाते हैं. Are you getting this? So these are called. इसमें मेन चीज यही है कि ये one या बड़ी है तो ये सिंगुलर होते हैं क्योंकि इसमें one आया ना, someone, anyone, no one, one, या body, somebody, nobody, anybody, they are always treated as singular. Somebody has, nobody has, nobody is, anybody is, one is. So you have to treat all these pronouns as singular. Slowly, slowly. Is it fine? Is this understood? Yeah. Now, that is your indefinite pronoun. That is your indefinite pronoun. Now, have you done this? Read up this? Clear? Okay. Next pronoun is called demonstrative pronoun. देखिए, indefinite pronoun in general बात कर रहा है. Demonstrative pronoun point out करता है. वो point out करता है noun को. It points out that noun जिसका pronoun replace कर रहा है. It points out. ये specific, particular noun के बारे में बता रहा है. Simple. अगर मैं कहूँ this is a beautiful watch. This is a beautiful watch. You know? Or these are lovely flowers. That is an awesome machine. Those are lush green forests. You know, yeah, such was the greatness of ancient India. You see, now just check this. This, these, that, those, such. These are called demonstrative pronouns because they demonstrate. Demonstrate का मतलब क्या है? They show. So when you say this is a beautiful watch, so you're showing some beautiful watch. When you say these are lovely flowers, you're showing some lovely flowers. Those that is an awesome machine. Those are lush green forests. Such was the greatness of ancient India. Then you are pointing out, you are showing. इनको कहते हैं demonstrate करना. कौन सा? It generalize करता है. When you say it is जैसे आप कहोगे it is a beautiful, हाँ, point out नहीं करता, कभी भी it point out नहीं करेगा. Suppose आप किसी चीज को कहोगे it is a nice bottle. No, wrong. It replace करता है लेकिन generalize करता है. आप कहोगे this is a nice bottle या that is a nice bottle. Never say it is a nice bottle. अगर point out करना है तो this that लगाओ. it आप ऐसे यूज करते हैं. Generalize कैसे यूज करते हो? मैं कहूँगा it is art. It is art that makes life useful. In general, it is art. General. अब मैं कहूँगा this is what I call art. या that is what I call art. अब this is what I call art या that is what I call art मतलब क्या? मैं point out कर रहा हूँ particular art को. मैं कहूँगा it is art. ये generalized idea. Are you getting my point? तो इधर वो देखना है कि ये point out करते हैं. इसमें it नहीं आता. it आपका personal pronoun में ही आएगा. वो replace करेगा simply, but point out नहीं करता. Replace करेगा. ये समझ आया? अब इसमें this and these, this talks about when things are near to you. That and those, ये singular, ये plural. ये तो समझ आया ना? This is singular, this is plural. ये singular, ये plural. ये when things are far from. मैं कहूँगा this is a beautiful watch, मेरे नजदीक है. These are lovely flowers, नजदीक है. But that is an awesome machine, वो दूर है. या those are lush green forests, मुझसे काफी दूर है. So that, those for far,
दिस फॉर नियर। आर यू गेटिंग? ये नियर फार किस में होता है? स्पेस में, डिस्टेंस में। अब नियर फार टाइम में भी होता है। सबसे नजदीक टाइम कौन सा हमारे पास? सबसे नजदीक टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। तो दिस फॉर टाइम के लिए प्रेजेंट, डिस्टेंस के लिए नियर, टाइम के लिए प्रेजेंट। एंड पास्ट हमसे दूर है, फ्यूचर हमसे दूर है, तो पास्ट और फ्यूचर। अब देखो मैं कहूंगा दिस इज बेटर टाइम देन दैट। दिस कौन सा हुआ? प्रेजेंट टाइम। दैट कौन सा हुआ? पास्ट। दैट विल बी बेटर टाइम देन दिस। दैट विल बी बेटर टाइम, दैट क्या हुआ? फ्यूचर। दिस क्या हुआ? प्रेजेंट। दीज आर बेटर डेज देन दोज विल बी बेटर डेज देन दीज। डेज, टाइम, मंथ्स, ईयर्स, कुछ भी लगा लो। प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो दिस एंड दिस, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हो तो दैट एंड दोज, सिंगुलर प्लूरल। आर यू गेटिंग दिस? नियर फार। अच्छा, सच होता है कंटेक्स्ट। सच हम वहां पे लगाते हैं जिसके बारे में आपने पहले बताया या लिखा हो। जब मैंने कहा सच वॉज द ग्रेटनेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो मैंने एंशिएंट इंडिया के बारे में कुछ बताया होगा, तारीफ की होगी, या मैंने मेरे लिखावट में या मेरे बोलने मैंने तारीफ की है। उसके लास्ट में मैं क्या कहता हूँ? सच वॉज। पॉइंट आउट कर रहे हो जो आपने ऑलरेडी बताया। सच वॉज द ग्रेटनेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। Such was the bravery that my friend showed in saving a little girl from fire. Such was the bravery. या ऐसे कहते सच बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। सच बिहेवियर किसको पॉइंट आउट करता है? जो बिहेवियर उसने पहले बताया हुआ है। सो इट रिलेट्स टू द पास्ट कंटेक्स्ट, अगेन पॉइंट्स आउट टू दैट पास्ट कंटेक्स्ट, तो सच लगाना है। इज इट अंडरस्टूड? दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब इसमें एक और यूज है, वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज मैं कहूं The elephants of Africa are larger than India. क्या करेक्ट है? क्यों? अ, नहीं, करेक्ट है, मतलब एलिफेंट्स तो उसके बड़े ही होते हैं। नॉट द कंटेंट बट ग्रामर कह रहा हूं मैं। कंटेंट तो ठीक है, ग्रामर ठीक है क्या? हाँ, तो कंपैरिजन गलत है यहाँ पे, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग एलिफेंट्स विद इंडिया। यू हैव टू कंपेयर एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका विद एलिफेंट्स ऑफ इंडिया। आपने एलिफेंट का कंपैरिजन इंडिया के साथ किया, लार्जर देन इज कंपैरिजन। सो you have to rub this part and you have to say the elephants of Africa are larger than the elephants of India. ठीक है, अब elephants Africa, elephants India, चार नाउन है। elephants is getting repeated. अगर repeated noun कंपैरिजन में repeated noun आपका प्लूरल है तो those, अगर repeated noun सिंगुलर है तो that। कंपैरिजन में यहां पर लिख लेना, अगर रिपीटेड नाउन जो है वो प्लूरल है तो दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय दोस। अगर सिंगुलर है तो दैट इज रिप्लेस्ड बाय दैट। ठीक है, ये याद है। रिपीटेड नाउन प्लूरल है तो दोस। अब यहाँ पे एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका आर लार्जर देन, तो ये मिटाते हैं और ये बना द एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका आर लार्जर देन दोज ऑफ इंडिया। सो दोज किसको रिप्लेस कर रहा है? एलिफेंट्स को। एलिफेंट्स इज प्लूरल, तो किससे रिपीट हुआ? दोज से। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, यहाँ पे क्या है? एलिफेंट्स। यहाँ पे क्या है? एलिफेंट्स है ना, एलिफेंट्स प्लूरल, तो दोस। अब अगर लिखते हैं लेट्स सपोज द वेदर ऑफ अफ्रीका, लेट्स सपोज अब लिखते हैं द वेदर ऑफ अफ्रीका इज हॉटर, द वेदर ऑफ अफ्रीका इज हॉटर देन द वेदर ऑफ इंडिया। अब क्या आएगा? द वेदर ऑफ अफ्रीका इज हॉटर देन, वेदर क्या है? सिंगुलर, देन दैट ऑफ इंडिया। वेदर की जगह दैट आएगा। अच्छा, अब ऐसे भी होता है वेदर ऑफ इंडिया
या वेदर इन इंडिया भी हो सकता है, दोनों ऑफ इन दोनों आ सकते हैं, वेदर ऑफ इंडिया, वेदर इन इंडिया। अगर आपने ऑफ यहां लगाया तो ऑफ यहां भी लगाना है, अगर इन लगाया तो इन। आप ऐसा नहीं कि इधर इन लगाओगे तो इधर ऑफ लगाओगे, इसको कहते हैं पैरेललिज्म। तो अगर यहाँ पे देखो वेदर इन इंडिया इज हॉटर देन दैट इन this Africa is hotter than that in India. The weather of Africa is hotter than that of India. Is that clear? ये हो गया अगर ऑफ फॉर्म है। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं और मैं इसकी जगह आई कैन इवन से अफ्रीकाज एलिफेंट्स, क्योंकि आप इनके साथ नाउन के साथ पॉजेसिव केस में अपोस्ट्रोफी डाल सकते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ लगा सकते हैं। अफ्रीकाज एलिफेंट्स, वेट रेज दिस, ठीक है। अब जैसे लिखा है अफ्रीकाज एलिफेंट्स आर लार्जर देन, तो एक आएगा यहाँ पे इंडियाज एलिफेंट्स, एलिफेंट्स लब बना है तो फुल स्टॉप, ये करेक्ट है। अफ्रीकाज एलिफेंट्स आर लार्जर देन इंडियाज, एक ये कह सकते हैं अगर पॉजिटिव केस है। दूसरा अफ्रीकाज एलिफेंट्स आर लार्जर देन, अब एलिफेंट्स देन दोज ऑफ इंडिया, दोज ऑफ के साथ सिर्फ इंडिया, इंडियाज नहीं आता, तो ये भी करेक्ट है। यू कैन हैव दिस, सॉरी, और यू कैन हैव दिस, दोनों आ सकते हैं। अफ्रीकाज एलिफेंट्स आर लार्जर देन इंडियाज और अफ्रीकाज एलिफेंट्स आर लार्जर देन दोज ऑफ इंडिया, इस केस में दोनों आ सकते हैं, और इधर आपका सिर्फ यही आएगा। याद रखा, दैट को रिप्लेस करें, दैट किसको रिप्लेस करेगा, सिंगुलर नाउन को, दोज किसको रिप्लेस करेगा, प्लूरल नाउन को, है ना। अब आएंगे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, नाउ इट्स मोर, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन, आगे आएगा, आप बताओ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब पॉपुलेशन की जगह क्या लगाएंगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन, पॉपुलेशन सिंगुलर है, ध्यान रखो, देन दैट ऑफ चाइना, देन दैट ऑफ चाइना। मैं पीपल कहूंगा तो पीपल मोर आएगा, देखो, द पीपल ऑफ चाइना, द पीपल ऑफ इंडिया आर टॉलर देन द पीपल ऑफ चाइना, देन दोज ऑफ चाइना, ऐसे रखना है, याद रखना है। और हमेशा इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग, इसमें प्लूरल में भी दैट डाल देते हैं, सिंगुलर में भी दैट डालते हैं, यहाँ पे हर कोई दैट डालता है, दोज किसी को याद नहीं रहता है, बट याद रखना कि प्लूरल होगा तो उसमें दोज डालना है, उसमें दैट नहीं डालना। एपोस्ट्रोफी एस दोनों जगह लग सकता है। मैं कहूंगा इंडियाज जीडीपी इज मोर देन चाइनाज, है ना, या अब इंडियाज जीडीपी सब्जेक्ट भी आया, मोर देन चाइनाज जीडीपी ऑब्जेक्ट भी आया। जॉन्स डॉग इज अ वेरी ब्यूटिफुल डॉग, और आई रियली लाइक जॉन्स डॉग, पॉजिटिव केस दोनों जगह आ सकता है, उसमें क्या है। इज दैट अंडरस्टूड? दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हैं? यस, नाउ आई विल मूव फर्दर, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इसको ध्यान से समझना। रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट ओनली अ प्रोनाउन, ये सिर्फ प्रोनाउन नहीं है, इसके दो फंक्शन है। रिलेटिव प्रोनाउन एक तो प्रोनाउन का काम भी करता है और ये कनेक्टर भी है। कनेक्टर मतलब इसको कंजंक्शन भी कह सकते हैं, कंजंक्शन या कनेक्टर, ये दोनों काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन दोनों काम करता है। तो कैसे, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो I met John who promised to help me.
I found the book that I had lost yesterday. ठीक है. Now see, अब relative pronoun generally replaces its antecedent. Antecedent क्या होता है? जो उससे पहले बिल्कुल पहले आए. Antecedent होता है जो उसके बिल्कुल पहले आए. जो नाउन उसके बिल्कुल साथ आएगा उसको रिप्लेस करता है. ये लिख लो. Relative pronoun replaces a noun which is coming closest before it or replaces its antecedent. तो who किस किस नाउन को रिप्लेस करेगा? जॉन को. दैट किस नाउन को रिप्लेस करेगा? बुक को. और यहाँ पे विच किस नाउन को रिप्लेस करेगा? बुक. पहले तो ये समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है. एज अ प्रोनाउन. ये एज अ प्रोनाउन ये रिप्लेस करेगा नाउन को. किस नाउन को रिप्लेस करता है? जो इससे बिल्कुल पहले आते हैं. एक पहली बात ये. ठीक है. और दूसरा, अब ये कनेक्टर कैसे है? क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. अब इनको अलग अलग कर देते. आई मेट जॉन फुल स्टॉप. आई मेट जॉन फुल स्टॉप. ही प्रॉमिस टू हेल्प मी. कितने सेंटेंसेस है? दो. आई मेट जॉन, ही प्रॉमिस टू हेल्प मी. हु क्या कर रहा है? जोड़ रहा है इसको. सो इट एक्टिंग एज अ कनेक्टर. आई मेट जॉन हु प्रॉमिस टू हेल्प मी. आई फाउंड द बुक फुल स्टॉप. आई हैड लॉस्ट इट यस्टरडे. आई फाउंड द बुक, आई हैड लॉस्ट इट यस्टरडे. अब दैट क्या कर रहा है? आई फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे. द गवर्नमेंट हैज बैंड द बुक फुल स्टॉप. इट द बुक कॉस्ट्स रुपीज 2000. The government has banned the book that which costs rupees 2000. ठीक है. तो कनेक्टर भी है और प्रोनाउन भी है. कनेक्टर दो सेंटेंस को जुड़ता है और प्रोनाउन जो बिल्कुल इससे पहले वाला नाउन है उसको रिप्लेस कर. इसमें बहुत सारे नाउन प्रोनाउन होंगे लेकिन किसको रिप्लेस करेगा? जो बिल्कुल साथ वाला नाउन या प्रोनाउन. इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, वही 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 आ रहा हूँ. आई एम कमिंग टू दैट. हु तो हम जनरली ह्यूमंस के साथ लगाते हैं. हु हुज हु ह्यूमन बींग्स के साथ. विच या दैट हम नॉन लिविंग के साथ लगा सकते हैं, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, सबके साथ विच या दैट लगा सकते हैं. दैट आता है जिसको हम कहते हैं डिफाइनिंग क्लॉज. दैट किस क्लॉज में आता है? डिफाइनिंग क्लॉज में. डिफाइनिंग क्लॉज होता है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. आई फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे. दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका रिलेशन किसके साथ है? फाइंडिंग द बुक के साथ. तो दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे बिकम्स अ डिफाइनिंग क्लॉज. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसका लिंक डायरेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ है तो उसके साथ आप दैट रखो. ठीक है. विच हम यूज करते हैं जनरली नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस. जो एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट बुक वो जो पिछले क्लॉज में लिखा है उसके साथ इंपॉर्टेंट नहीं है. द गवर्नमेंट इज बैंड द बुक विच कॉस्ट. बुक कॉस्ट करती है 2000 रुपए. क्या गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया कि वो 2000 रुपए कॉस्ट करती है? और इसको हम कॉमास इसको सेपरेट करते. जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है ना विच वाला, इसको कॉमा लगा के सेपरेट करते क्योंकि ये एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. इसका रिलेशन इसके साथ नहीं रहता. अब देखो ना आपके इसमें कई बार नहीं होता कॉमा, पंक्चुएशंस नहीं दी जाती. आपको दिमाग लगा के देखना है कि वहां पे डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग. मैं कहूंगा जैसे ऐसा देखिए सिंपल. मैं कहूंगा द थीफ द थीफ हु स्टोल योर बाइक वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब रिलेटिव क्लॉज जो है ना इसमें, हु स्टोल योर बाइक, ये रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं ना ये वाले दैट से, विच से, हु से, ये होते हैं रिलेटिव क्लॉज. ठीक है. द थीफ हु स्टोल योर बाइक वाज अरेस्टेड.
हु स्टोल योर बाइक क्या है? ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है? आप बताओ। बाकी इंफॉर्मेशन क्या है? द थीफ वाज अरेस्टेड और बीच में लिखा हु स्टोल योर बाइक। डिफाइनिंग है ना? क्योंकि अरेस्ट क्यों किया था? क्योंकि उसने बाइक स्टोल की थी, तो हु स्टोल योर बाइक डिफाइनिंग क्लॉज बना। अब मैं कहूंगा द थीफ हु इज 6 फीट टॉल वाज अरेस्टेड यस्टरडे। अब हु इज 6 फीट टॉल कॉमर्स के अंदर आएगा, हु स्टोल योर बाइक कॉमर्स के बगैर आएगा। जो डिफाइनिंग है उसमें कॉमा नहीं रखते, वो सेपरेशन नहीं देते, वो पार्ट ऑफ द होल क्लॉज रहता है। समझ आ रहा है सबको? जो नॉन डिफाइनिंग है, जो एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें आपने क्या देना है? उसमें आपने कॉमर्स देने हैं, उसको सेपरेशन देनी है। आर यू गेटिंग? तो विच हम जनरली किधर यूज करते हैं? नॉन डिफाइनिंग। दूसरा डिफरेंस इसका है, दैट होता है वाइडर, विच होता है जो पॉइंट आउट करता है। जैसे आप कहोगे द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स विच दीज एनिमल्स डिस्प्ले। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में विच ही आएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। अब मैं कहूंगा वेराइटी ऑफ फीचर्स दैट दीज एनिमल्स डिस्प्ले। अब वेराइटी में आप विच चूज नहीं करोगे, वेराइटी इज ब्रॉड एरिया। हाँ, पर्टिकुलर इज विच, तो विच पर्टिकुलराइज करता है, दैट ब्रॉड एरिया डिस्कस करता है। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से अब इसमें देखो क्या है, इसमें आपका वेव गॉट जैसे हमने इसमें किया था, ये किस में आया था हमारा? पर्सनल प्रोनाउंस में आया था ना। सब्जेक्ट अगर हु लेंगे तो ये सब्जेक्ट है, हुम लेंगे ये ऑब्जेक्ट है, इसका पोजेसिव इज हुज। अगर विच लेंगे ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी विच ही आता है। एक कुछ अपना इसका नहीं है, कई बार ये बोरो करता है पोजेसिव हुज से। अगर दैट लेंगे वो सब्जेक्ट है, दैट ही इसका ऑब्जेक्ट है, इसका पोजेसिव नहीं। इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव। पोजेसिव वाला तो सिंपल है, हुज। द स्टूडेंट हुज पेरेंट्स हैव कम, द मैन हुज बाइक वाज स्टोलन। तो हुज टॉक्स अबाउट पोजेशन, वो सिंपल है। या विच विच आइडेंटिफाई करना भी सिंपल है, क्योंकि दोनों जगह विच है, सब्जेक्ट की जगह विच, सब्जेक्ट दैट दैट आइडेंटिफाई करना कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है कि किधर हमने हु लगाना है और किधर हमने हुम लगाना है। यहाँ पे इशू होता है हु कहां पे लगाएंगे और हुम कहां पे। अभी अभी बताया हु हुम हुज किधर होता है, ये हम पर्सन ह्यूमन बींग्स के साथ लगाते हैं। विच हुज animals, plants, non-living things, abstract nouns, the courage which he displayed, the truth which will prevail. That again, animals, plants, non-living things, abstract nouns, वहां पे भी आप that लगाते हैं। ठीक है? अब देखिए who और whom में क्या फर्क है। Suppose I say this is the man who helped me, this is the man whom I helped. ठीक है? यहाँ पे who किसको रिप्लेस कर रहा है? मैन को। यहाँ पे whom किसको रिप्लेस कर रहा है? मैन को। ठीक है? यहाँ पे who क्या है? दिस इज सब्जेक्ट। whom क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट। यानी मैन यहाँ पे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। यहाँ पे मैन क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब क्लॉज को देखते हैं, वी सेपरेट द क्लॉज एंड चेक कि क्या ऐसा है। इसका क्लॉज क्लॉज मतलब जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। द मैन हेल्प्ड मी, द मैन हेल्प मी क्लॉज बनी। मैन सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, द मैन हेल्प मी। क्योंकि मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है इस क्लॉज में, इसलिए आपने हु लगाया। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर आई सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, the man object. I helped the man. The man I helped is not a clause. It can be a subject or an object. The man I helped was very kind to me. Clause बनी I helped the man. अब the man क्या है यहाँ पे? Object. इसलिए आपने whom लगाया। अब आसान तरीका देखने का ये है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपका who या whom लगा है, अगर इसके बाद उसी क्लॉज में वर्ब आता है, अगर वर्ब उसी क्लॉज में आता है तो आपने क्या लगाना है? who। और अगर सेम क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन आता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो क्या लगाना है? ये ध्यान में रखना।
सेम क्लॉज में अगर वर्ब आ रहा है तो क्या लगाना है? हु लगाना है। अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्ट बन जाता है, उस क्लॉज का वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो क्या लगाना है आपने? तब आपने हुम लगाना है। ये बी की बात समझ आई? सिंपल तरीका, आपको क्लॉज ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप याद रखो कि सेम क्लॉज में अगर हु या हुम है और आगे वर्ब आ रहा है उसी क्लॉज में, तो हु लगाना है। हु या हुम है और आगे नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो क्या लगाना है? तो हुम लगाना है। तो ये क्लॉज सेम होनी चाहिए, है ना? अब इसका चेक करते, सपोज मैं कहूं दिस इज द हाउस विच माई अंकल डिजाइंड। दिस इज द हाउस विच माई अंकल डिजाइंड। अब विच क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में? बताओ। दिस इज द हाउस विच माई अंकल डिजाइंड। ये object which means हाँ, क्योंकि विच के बाद क्या आया? विच के बाद क्या आया? माई अंकल। तो माई अंकल क्या है? नाउन प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अब मैं कहूंगा दिस इज द हाउस विच हैज 10 डोर्स। दिस इज द हाउस विच हैज 10 डोर्स। अब विच के बाद क्या आया? हैज, वर्ब आया। तो यानी विच क्या है? सब्जेक्ट है। द हाउस हैज 10 डोर्स। आर यू गेटिंग? सेम इज ट्रू विद दैट। इस तरह से आपने पहचाना, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एरर आया आ ही नहीं सकता। विच दोनों विच है या दोनों दैट है। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? हु कहां पे और होम कहां पे। अच्छा, अब अगर हम ऐसा एक सेंटेंस लेते हैं, बाकी आगे और भी हो सकता है कुछ बड़िंदा। द मैन हु ही सेड विल बी वेटिंग एट द स्टेशन। अब इतने पार्ट में क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? द मैन हु ही सेड विल बी वेटिंग एट द स्टेशन। हाँ, क्योंकि आपने देखा कि हु के बाद हमारा क्या आ रहा? प्रोनाउन आ रहा। तो हमने कहा कि यार अगर हु इसके बाद प्रोनाउन आएगा तो फिर हमारा हु आना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ही सेड इज नॉट द सेम क्लॉज, ये इंसर्टेड क्लॉज है। हु अभी भी किसके साथ जा रहा है? वर्ब के साथ। इट्स लाइक दिस, द मैन हु विल बी वेटिंग एट द एयरपोर्ट। ही सेड को मैं पीछे भी लगा सकता हूँ, ही सेड, या मैं कहूंगा ही सेड द मैन हु विल बी वेटिंग एट द एयरपोर्ट। सो आई सेड इन द सेम क्लॉज, इट्स एन इंसर्टेड क्लॉज। आप ही सेड को निकाल के कहीं पे भी लगा सकते हो। हु के बाद ही का कोई मतलब भी नहीं है। हु और ही इकट्ठे आ ही नहीं सकते, एक ही क्लॉज में हु और ही इकट्ठे आ ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग मी? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एन इंसर्टेड क्लॉज। हु अभी भी किसके साथ जा रहा है? वर्ब के साथ। हु के बाद अभी भी क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, तो हु करेक्ट है। यू गेट दैट? सो बी बिवेयर ऑफ दिस कंफ्यूजन। जनरली क्या होता है, इधर ऐसा होना चाहिए था, सेपरेशन होनी चाहिए थी। लेकिन जो ये पेपर्स डालते हैं इसमें कई बार लिखा होता है कि इग्नोर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन एरर्स, कि पंक्चुएशन नहीं भी होगी तो आपको पहचानना है। समझ आया कि किस तरह से आपने करना है? राइट। अच्छा, इसमें एक और बात है, जो दैट है, दैट कुछ केसेस में कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमंस आल्सो। कुछ केसेस में, जैसे अगर आपके लेट अप दिस, अगर ओनली या ऑल, कम एंड कम, ओनली, ऑल, वन, और कौन सा है, नन, या डायरेक्ट सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब है ईएसटी या मोस्ट फॉर्म, डायरेक्टली अगर होगा विदाउट एनी रेफरेंस, तो इनके साथ हम जनरली दैट यूज करते हैं। इधर ना ही विच आएगा ना ही हु या हुम आएगा, इनके साथ दैट यूज करते हैं। ही वॉज द ओनली पर्सन, he was the only person that had finished his project on time. That had, पर्सन के लिए हमने that यूज किया क्योंकि ओनली वर्ड आया।
These are all the people that came to attend the seminar. वहां पे who came to attend the seminar? All the people. The one that can work for more hours attains ultimate success. The one that can work for. None that were present on that day remember what happened. None that were present. So none, one, किसको represent कर रहा है? Humans को. तो humans के साथ आप इन cases में that लगा सकते जब ऐसा होगा. या ऐसा लिखा होगा, he is the most industrious person that has ever lived on the face of earth. He is the most. हाँ, he is the most. But अगर he's one of the most, वहाँ नहीं, direct superlative. Not he's one of the most. किस केस में? इस इन सब में that हमेशा डिफाइनिंग ही करेगा, वो डिफाइनिंग ही रहेगा, बिकॉज दैट आपका नॉन डिफाइनिंग में यूज ही नहीं करते, वो होता ही नहीं नॉन डिफाइनिंग में यूज, वो हमेशा डिफाइनिंग ही आता है. जब मैंने कहा ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन that has ever lived on there. But अगर ऐसे लिखो, he is one of the most hard working persons, अगर one of the most आएगा वहां पे that नहीं आएगा, वहां पे cool लगेगा. मैंने कहा ना डायरेक्ट सुपरलेटिव, डायरेक्ट द मोस्ट, द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, तब वहां पे that लग सकता. अगर वन ऑफ दी होगा उसमें हु लगाना है. अगर पर्सन की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस पर्सन्स, सम ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस पर्सन्स, ऐसे वाला आएगा ना, तो आप उसमें से ग्रुपिंग कर रहे हो, मतलब ग्रुप में से निकाल रहे हो. ग्रुपिंग करके कर रहे हो तो वहां पे पर्सन्स के लिए आप हु ही लगाओगे. लेकिन अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव होगा पर्सन के लिए, इज द मोस्ट समथिंग, तो उसके साथ दैट लगाते हो. और शी इज द मोस्ट, शी इज द हाईएस्ट, शी इज द टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, व्हाटएवर, तो उसके साथ आप दैट रेफर करते हैं. इज आर अंडरस्टूड? दैट और कहां कहां पे लग सकता है. अच्छा, सेकेंड थिंग, अगर प्रेपोजिशन है, मैंने पहले भी बताया था, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा. जैसे आप कहोगे द स्टूडेंट्स, फिर आगे मोस्ट ऑफ whom, मोस्ट ऑफ who नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ whom were absent, ऐसा. सो मोस्ट ऑफ whom, ऑफ के बाद whom, मोस्ट ऑफ whom, सम ऑफ whom, सम ऑफ which, तो which whom वहां पे क्या है? दैट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्म. इज दैट अंडरस्टूड? यार, सो बेसिकली दैट इज अबाउट योर प्रोनाउंस. यही है प्रोनाउंस, ये याद रखना. अच्छा, लिखिए एक सेंटेंस, लिखिए, राइट डाउन अ सेंटेंस, राइट डाउन अ सेंटेंस. शी इज वन ऑफ द मोस्ट, she is one of the most prolific writer. She is one of the most prolific writer who has ever lived. She is one of the most prolific. Prolific means productive. She is one of the most prolific. Prolific. She is one of the most prolific writer who has ever lived. Tell me, is this correct or wrong? She is one of the most prolific writer who has ever lived. Anybody? Come on, you can do better. Okay, सबसे पहले ऑफ द फॉर्म के बाद हमेशा प्लूरल. जब मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स होना चाहिए, राइटर नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है. ऑफ द फॉर्म के बाद प्लूरल. शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स, है ना. हु, अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वो किसको रिप्लेस करेगा? एंटीसीडेंट, जो क्लोजेस्ट नाउन है. क्लोजेस्ट नाउन कौन सा है? राइटर्स. राइटर्स प्लूरल है. ओके, वर्ब क्या हो जाएगा फिर? राइटर्स हु हैव.
who have ever lived. She is one of the most prolific writers who have ever lived. यानी कि बहुत सारे prolific writers है. She is one of them. She is not the only one. She is not the only one. Are you getting? Raju is one of the tallest players, huh, who have played. Players who have played in the team. Not who has played. It doesn't replace Raju, it replaces players. तो इट रिप्लेसेस एंटीसीड. एंटीसीडेंट मतलब जो उसके बिल्कुल पहले वाला है उसको दे. हाँ, इसमें एक बात याद रखना, अगर एंटीसीडेंट नेगेशन में है तो किसको रिप्लेस करेगा? उससे पहले वाले को. सपोज आई से who dash, it is John and not I. अब who यहाँ पे I को रिप्लेस करना चाहिए था, लेकिन I के साथ क्या है? Not. अगर not है तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा, उससे पहले वाले. उससे पहले वाला कौन सा है? John. So this John and not I. Who, John के साथ क्या आता है? Verb. Who John is to be played. It is John and not I who is to be played. ठीक है, अब इसको रिप्लेस करते हैं. अब कहते हैं it is I and not John. So who am to be played? I am to be played. Are you getting? Who am to be played. और अब इसको फिर रिप्लेस करते हैं. अब अगर लिखा होगा it is I and John, I and John, अब who किसके साथ जाएगा? जब and होगा, कॉमा होगा, तो who दोनों के साथ जाएगा. It is I and John who are to be played. Are you getting? So एंटीसीडेंट को पहचानना कि कौन सा है. नेगेशन में तो नहीं है. नेगेशन में नहीं है तो अगर एंड है या कॉमास में 2-3 है तो फिर प्लूरल, वो सारे मिला के आपने वो एंटीसीडेंट्स लेने हैं. Is that part clear? Yes, everybody is clear on this, right? Now, let's take up some questions based on pronouns. ये बात समझिए. 2, 3, 4 and 5. So we've got first 30 questions that are based on without options. इसमें options नहीं है. And you have to tell me where the error lies. Error will be mostly in pronouns. अब पहला देखिए क्या है. You, Michael and I are to be blamed for the failure of the project. Because blame के लिए क्या आएगा? 1, 2, 3. So you and Michael are to be blamed for the failure of the project. Very nice. चलिए next one बताइए. The management is planning to congratulate I, Mary and you on successfully completing the difficult assignment. आप successfully completing है. क्या आएगा बताओ? फिर गलती कर ली. लास्ट टाइम भी यही गलती की थी. ध्यान रखो कहाँ पे है. वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आना चाहिए ना. द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू कंग्रेचुलेट. अब क्या आएगा? सक्सेसफुली. तो पहले किसकी? 2, 3, 1. 2, 3, 1. सक्सेसफुली मीन्स सो यू, 3 is Mary and me. You, Mary and me. गुड के लिए क्या है? लास्ट टाइम बताया था. गुड के लिए क्या है? 2, 3, 1. बैड के लिए क्या है? 1, 2, 3. तो 2 क्या है यहाँ पे? You. 3 क्या है? Mary. और 1 क्या है? Me. Me क्यों है? क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है. So you, Mary and me on successfully completing that difficult assignment. Next one.
बताओ। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबको याद है, वेरी नाइस। इट वाज आई, इट इज, इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन। इट वाज आई, इट वाज ही, इट इज ही, इट वाज आई, यू डॉक्यूमेंट इन एक्सलेंट मोमेंट अमंग द ट्राइबल, सो इट वाज आई। करेक्ट। बताओ फोर्थ का। क्या आएगा? हर हाउस इज बिगर देन रिलेटिव्स। हाउस का कंपैरिजन रिलेटिव्स के साथ, मतलब घर बड़ा है रिलेटिव्स की हाइट से, ये क्या ना हमने, या हमने घर का घर के साथ कंपैरिजन करना होगा, तो क्या आएगा? अभी तो किया हमने। अब अगर हर हाउस है तो हमने ऑफ फॉर्म भी तो कर सकते हैं ना। वो भी आ सकता है, लेकिन क्या रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एक घर में रहते होंगे सारे? हाँ, तो क्या आएगा? हर हाउस इज बिगर देन दोज ऑफ हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दो तरीके हैं, बिगर देन दोज ऑफ हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दोज क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? हाउसेस। इट मीन्स, सो बिगर देन हाउसेस ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मींस उनके हाउसेस होंगे, मींस दोज ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अगर आपने आप पॉजिटिव केस डालना है वो भी हो सकता है, और यू कैन से बिगर देन हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, इधर अपोस्ट्रोफी डालिए, फ्रेंड्स हाउसेस, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हाउसेस। तब आपने, जब एस होता है तब सिर्फ अपोस्ट्रोफी डालते हैं, अगर एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस डालते हैं। अगर लास्ट में एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस डालेंगे, पॉजिटिव देना है। अगर एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी। ये भी सही है कि देन हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हाउसेस, उनके घरों से बड़ा, या फिर दोज मींस हाउसेस ऑफ हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। इधर एपोस्ट्रोफी नहीं, अगर ऑफ फॉर्म लगाए इधर, तो दोनों तरीके आ सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस, राइट? चले आगे। Raj and me had a spirited argument on the importance of honesty. आप कोई आंसर देते ही नहीं आज को। ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए। लास्ट टाइम आए थे आप? लास्ट टाइम का आपने मिस कर दिया। ओके। राज एंड मी हैड अ स्पिरिटेड आर्ग्यूमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन आवर लाइफ। क्या आ सकता है? राज एंड आई, क्योंकि हैड इज वर्ब, उससे पहले आई आना चाहिए, मी तो नहीं आएगा, वो तो वर्ब के बाद आएगा। राज एंड आई हैड अ स्पिरिटेड आर्ग्यूमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन आवर लाइफ। अब मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, आई एंड राज आएगा या राज एंड आई आएगा? बट साथ में स्पिरिटेड है। स्पिरिटेड का मतलब है हेल्दी डिस्कशन। अगर आर्ग्यूमेंट होता देन इट वाज नेगेटिव, आर्ग्यूमेंट मींस फाइट और quarrel, तब वहां पे आई एंड राज आता है। बट स्पिरिटेड आर्ग्यूमेंट मींस अ हेल्दी डिस्कशन, इट्स अ पॉजिटिव, सो इट हैज टू बी राज एंड आई। नेक्स्ट वन। हाँ, लेट, कॉल, मेक, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म। सो लेट हिम एंड हर discuss the issue and solve their problems. Next one. जहां पे वन लगे वो हमेशा सिंगुलर होता है। एनी वन, सम वन, नो वन, एवरी वन। तो एवरी वन के साथ डू नहीं आएगा ना। एवरी वन डज नॉट गेट जस्टिस, एवरी वन इज सिंगुलर, एवरी वन डज नॉट गेट जस्टिस। नेक्स्ट वन। बताइए। माई फ्रेंड डज नॉट गेट her clothes stitched by a tailor, she stitches them herself. रिफ्लेक्सिव, ओन कहां से आएगा? हर सेल्फ, हिमसेल्फ। हाँ, ओन नहीं आना चाहिए, इट हैज टू बी हर सेल्फ। अब हर सेल्फ आप बताओ कौन सा है? ये आप बताइए, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है? यहाँ पे देख के बताओ। ये
आकाशा जी की सखी कहेगा ये भी लगाने को हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ इसका मतलब वो खुद कपड़े सीते, खुद का मीनिंग आ रहा है। सो शी स्टिचेस देम हरसेल्फ, इट इज़ एम्फैटिक, हरसेल्फ। नेक्स्ट वन। चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी के लिए ही या शी, हिज या हर यूज़ नहीं करते, उसके लिए इट यूज़ करते। द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट इट्स वे, और कौन-सा इट्स? विदाउट एपॉस्ट्रोफी। इट्स मतलब उसका। A child has lost its way and does not know where. पेरेंट्स तो दो ही होते हैं, तो बोथ लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ रिडंडेंसी एरर, सो बोथ इज रॉन्ग। सिंपली से एंड डज नॉट नो वेयर। आगे, इट्स पेरेंट्स आर, उसके पेरेंट्स, हिज हर नहीं लगेगा, इट ये लगेगा। इट्स पेरेंट्स, इस पहले में भी इस दूसरे में भी। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा है, हाँ, इसका मतलब है इट इज या फिर इट हैज, ये कॉन्ट्रैक्शन है। इट apostrophe s is contraction, और possessive उसका या उसकी would be this. Next one. हाँ, अब हु के बाद क्या है? प्रेसिडेंट, सेम क्लॉज में है। अब सेम क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन है तो क्या आना चाहिए वहां पे? whom आना चाहिए। द प्रेसिडेंट इनवाइटेड ऑल द गेस्ट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का क्या रिप्लेसमेंट होगा? whom. All the guests, whom the president invited to the meeting have come on time. Whom the president, correct. Next one. After I went abroad, I and my grandmother saw less of वन अदर, नहीं, क्योंकि दो की बात हो रही है। ईच अदर, एक और बात याद रखो, एक तो ईच अदर हो गया, बताइए। यस, कुछ आइडिया है क्यों? ऐसा क्यों? माय ग्रैंडमदर एंड आई, क्यों? क्योंकि जो हम ग्रुपिंग करते हैं ना गुड और बैड की, वो सिर्फ सब्जेक्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। अगर आपका पोजेसिव फॉर्म है, माय अंकल, माय फादर, हिज मदर, हर सिस्टर, अगर पोजेसिव फॉर्म है, वो हमेशा प्रेसिडेंस लेता है। मतलब अगर वो आपके इसमें है, उसमें गुड बैड नहीं देखना, उसमें उसी को पहले ला, तो इट विल ऑलवेज बी, ऐसे नहीं आएगा ही एंड हिज अंकल एंड ही, हर मदर एंड शी, their grandfather and they. You get my point? So first comes the possessive case and then the nominative or the subjective or the objective case. तो इस केस में भी क्या आएगा? My grandmother and I saw less of each other. क्योंकि दो की बात हो रही है। My grandmother and I. Next one. Never hate anyone for anything that one has not done. अब देखो anyone कौन सा प्रोनाउन है? अभी बताया। Anyone, someone, no one, one, everyone, ये कौन से प्रोनाउंस आते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। एनीवन आपको पता है कौन है? कोई भी हो सकता है। मैंने ये भी बताया वन के साथ वन नहीं आता और वन किसी और के साथ नहीं आता, इसलिए एनीवन की जगह क्या यूज किया? वन। नेवर हिट एनीवन फॉर एनीथिंग दैट वन हैज नॉट डन। बट अब एनीवन के साथ क्या रिप्लेस कर सकते हैं? अगर वन की जगह हम क्या कर सकते हैं? यू तो नहीं आएगा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सेकंड पर्सन कैसे डालोगे? मैंने अभी तो बताया समवन हो, एनीवन हो, नो वन हो, उसके साथ ही, शी, हिज, हर यूज कर सकते हैं। वन के साथ वन यूज करना है। समवन, एनीवन, नो वन के साथ ही, शी या हिज, हर यूज कर सकते हैं, लेकिन वन के साथ आपने वन ही यूज करना है। तो यहां पे क्या आएगा? नेवर हेट एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही, और यू कैन से और शी, ही और शी हैज नॉट डन। एनीवन इज सिंगुलर, सिंगुलर रिप्लेसमेंट थर्ड पर्सन में ही और शी कर सकते हैं। वन के साथ वन ही, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड माइंड वंस बिजनेस, वन के साथ ही शी नहीं आता। इज इट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ही शी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, 13th। अब सबसे पहले अब एक तो बहुत ही सिंपल था, ईच को ही हटा दो। नहीं नहीं, आ नहीं, आ नहीं, क्योंकि ईच हमारा प्रोनाउन है, उसको क्यों हटाएंगे? उसको उसी को तो करेक्ट करना है, उसको किस तरह से यूज करना है हमने। इफ यू से बॉयज वर हैप्पी विद देयर प्राइजेस, वो तो ठीक है ही है, लेकिन ईच कैसे यूज करेंगे? मेन तो वही मुद्दा है। तो क्या कहेंगे? ईच, पूरा सेंटेंस बताइए। हाँ, वेरी नाइस, दैट इज करेक्ट। ईच ऑफ द बॉयज वाज हैप्पी विथ हिज प्राइज।
क्योंकि ईच इज सिंगुलर तो वॉज आएगा और हिज आएगा। या आपको इसको एडजेक्टिव बनाना तो यू कैन इवन से ईच बॉय वाज हैप्पी विथ हिज प्राइज, या तो ईच बॉय वाज हैप्पी विथ हिज प्राइज, या ईच ऑफ द बॉयज वाज हैप्पी विथ हिज प्राइज। कई बार ऐसे ईच ऑफ द बॉयज वर हैप्पी, वर नहीं आएगा, ईच है सब्जेक्ट वहां पे, ईच के साथ वाज आता है, ईच के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ वाज आएगा। नेक्स्ट वन, फॉलो, हाँ बताइए। हैव की जगह हैज, लेकिन ईच के साथ हम नॉट यूज करते हैं क्या? हाँ, ईच की जगह आप नन लगाओ। नन ऑफ अस हैज लाइक द मूवी एंड छोटा ग्रुप है तो एक एक के बारे में बात कर सकते हैं, नॉट नॉट इवन वन, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नन ऑफ अस हैज लाइक द मूवी। लास्ट टाइम बताया था ना, अगर छोटा ग्रुप है जिसमें वन एट अ टाइम की बात कर सकते हो तो नन सिंगुलर, और अगर बड़ा ग्रुप है जिसमें आप मेजोरिटी की बात कर रहे हो तो नन प्लूरल। सो नन ऑफ अस हैज लाइक्ड द मूवी, नन ऑफ अस हैज लाइक, ईच के साथ नो या नॉट नहीं आता। नेक्स्ट वन, माई गार्डन गिव्स मोर फ्रूट्स देन हिज। गार्डन लगाने की जरूरत नहीं है, गार्डन इज अंडरस्टूड। माई गार्डन गिव्स मोर फ्रूट्स देन हिज गार्डन, गार्डन नहीं, जस्ट हिज। और ये तो मैंने अभी बताया। राजू इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज हु हैव, क्योंकि हु किसके साथ जाएगा? बॉयज के साथ, तो आगे हैव प्लेड बास्केटबॉल। हु राजू के साथ भी जाएगा, हु बॉयज के साथ, एंटीसीडेंट के साथ जाएगा, तो हु हैव प्लेड बास्केटबॉल, हु हैव प्लेड बास्केटबॉल। नेक्स्ट वन, I went to my office very early but could not meet तीन कुलीग से, मतलब तीन में से मैं एक को भी नहीं मिल पाया, तो तीन में से एक मीन्स एनी, एंड कुड नॉट मीट एनी ऑफ माई थ्री कुलीग्स, आइदर ऑफ टू होगा, तीन चार पांच में से एक मीन्स एनी ऑफ माई थ्री कुलीग्स, इधर की जगह एनी। नेक्स्ट वन, द एडिटर्स ऑफ फ्रंटलाइन मैगजीन आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन शोरलाइन मैगजीन। क्या कंपैरिजन सही है? एडिटर्स का कंपैरिजन शोरलाइन मैगजीन के साथ, जबकि एडिटर्स का कंपैरिजन एडिटर्स के साथ होना चाहिए। अभी समझ आया? दैट दोस्त बताया था ना अभी, क्या आना चाहिए? एडिटर्स ऑफ शोरलाइन मैगजीन, फ्रंटलाइन मैगजीन आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन द एडिटर्स ऑफ शोरलाइन मैगजीन। एडिटर्स इज गेटिंग रिपीटेड, तो एडिटर्स की जगह क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी। दोस्त, तो क्या आएगा? The editors of Frontline magazine are better informed than those of Shoreline magazine. Editors is plural. The editors of Frontline magazine are better informed than those of Shoreline magazine, which is same as saying than the editors of Shoreline magazine. Did you understand? Got it? So those of Shoreline magazine. Next one. Any one of the two solutions. दो है तो उसमें either. Any one तो वैसे indefinite pronoun होता है, दो में either. So you say either of the two solutions is, either के साथ singular, either के साथ are नहीं आएगा, so you say either of the two solutions is advisable to overcome the problem, so either, neither, each के साथ singular. Next one, Shreya is not a better singer than me, than I. क्यों बताया था मैंने? No. देन आई क्यों आया? क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ क्लॉज है, इसलिए वहां पे आपने सब्जेक्ट लगाना है। इट्स समथिंग, श्रेया इज नॉट अ बेटर सिंगर देन आई एम अ सिंगर, देन आई इट्स समथिंग लाइक दिस, मी एम अ सिंगर नहीं आ सकता ना। अगर एंड इस पे होता है तो ये स्टार्ट ऑफ अ क्लॉज है, क्लॉज अंडरस्टूड है, हिडन क्लॉज है। किसके बाद? किसके बाद? देन के बाद क्या आता है? देन जो है ये आपका प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ये आपका कंजंक्शन भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे आएगी वो देखो।
अब देखो, श्रेया is a better singer than me by a great degree. This is one clause. One clause. जब एक clause होगी तो उसके अंदर than becomes a preposition. तो preposition के बाद आपका object form हमेशा me. लेकिन जब ये आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये होता है स्टार्ट ऑफ अ न्यू क्लॉज. तो हिडन क्लॉज. अब देखो जैसे लिखा होगा, he is older than I. Full stop. He's older than I. तो मतलब है he's older than I am old. I am old is understood. अब देखो, he's older than me by 4 years. अब एक ही क्लॉज बना, आगे कोई क्लॉज नहीं है. He's older than me by 4 years. Her sister is taller than she. Full stop. She is tall. Her sister is taller than her by a foot. अभी समझ आया? तो जब ये एंड होगा ना, अगर यहाँ पे आपका प्रोनाउन पे एंड हो रहा है, आगे कोई इंफॉर्मेशन है तो आपने सब्जेक्ट लगाना है, और अगर आगे इंफॉर्मेशन है तो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है. समझ आ रहा है? तो यहाँ पे श्रेया इज नॉट अ बेटर सिंगर देन आई. आर यू गेटिंग दिस? नाउ नेक्स्ट वन. माय फ्रेंड अ राइटर हैज सेंट मी 3 स्टोरीज ऑफ हर. क्विकली, लास्ट टाइम आप सबने पढ़ा ही है. कौन देगा मुझे आंसर? हाँ, एक ही है, राइटर है. हर, योर, माय, उसको नाउन के साथ आना चाहिए ना. मैंने क्या बताया, नाउन के साथ आना चाहिए. यहाँ पे नाउन है हर के साथ. 3 स्टोरीज ऑफ हर्स, ऑफ योर्स, ऑफ माइन. लास्ट टाइम बताया नहीं था मैंने? ऑफ हर्स. 3 स्टोरीज ऑफ हर्स. हर स्टोरीज, योर स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ योर्स. स्टोरीज ऑफ योर नहीं होगा. अगर योर है तो उसके साथ नाउन होना ही होना चाहिए. हर है, योर है, माय है, तो नाउन के साथ ही आएगा, नाउन के बगैर नहीं आएगा. और नाउन के बगैर है तो योर्स, हर्स, माइन. नेक्स्ट वन. तो हर्स, आगे बढ़िए. नहीं ज्यादा ही लगा हुआ है। वन नजर आएगा, यानी ऑल द बॉयज है तो 2 से ज्यादा है तो क्या आएगा? विथ वन अनदर. करेक्ट हो. चलिए आगे. माई वाइफ कुक्ड हरसेल्फ. अपने आप को कुक किया. हाँ, या तो आएगा, नहीं नहीं, बाय हरसेल्फ इट डजंट मेक सेंस, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. यू कैन से माई वाइफ कुक द मील हरसेल्फ, कुक द फूड हरसेल्फ, कुक द डिनर हरसेल्फ, या एम्फेटिक लगाओ. अगर आपने नहीं लगाना है, माई वाइफ कुक्स ऑन हर ओन. ऑन हर ओन, नॉट बाय हरसेल्फ. या ऑन हर ओन, या माई वाइफ कुक द फूड हरसेल्फ, माई वाइफ कुक द डिनर हरसेल्फ. हाँ, कुक फॉर हरसेल्फ आ सकता है. यस, अपने लिए बना है, किसी और के लिए. कुक फॉर हरसेल्फ आ सकता है. करेक्ट. नेक्स्ट वन. Again, this is the same thing. She's one of the best novelists who have ever lived in India. Who have ever lived in India. Correct. Oh, because they say inserted clause है. they से हटा के कहीं पे भी लगा सकते हो. whom के बाद अभी भी क्या आ रहा है? is the best artist. is verb. तो verb के साथ क्या आएगा? who. So this is Mr. Hussain who they say is the, who is the best artist in the country. they से कहीं पे भी लग सकता है. और इन्होंने कॉमर्स दिए हुए हैं, कॉमर्स में लगाया हुआ उसको. सो होम की जगह हु. होम की जगह क्या आएगा? हु. नेक्स्ट वन. जब एवरी या ईच एंड से रिपीटेड होता है तो वो हमेशा सिंगुलर है. एवरी मैन एंड एवरी वुमन वाज आस्क्ड टू एक्सरसाइज हिज हर. यहाँ पे हिज और हर दोनों आएंगे. देखो ना, मैन भी है, वुमन भी है, तो हिज, हिज, एवरी मैन एंड एवरी वुमन भी वही है, एवरी मैन एंड वुमन भी वही है, ईच मैन एंड वुमन, ईच मैन एंड ईच वुमन, सबका सेम आएगा. वॉज आस्क्ड टू एक्सरसाइज, आगे हिज स्लैश हर.
हिज हर दोनों आने वहां पे, हिज स्लैश हर। अब ये थोड़ा क्लमजी कंस्ट्रक्शन है, हिज और हर दोनों लगा के। दूसरा तरीका है ऑल मेन एंड वुमेन। दूसरा तरीका है ऑल मेन एंड वुमेन वर आस्क्ड टू एक्सरसाइज देयर राइट। ऑल के साथ देयर आ सकता है, ऑल मेन एंड वुमेन हो सकता है, या एवरी मैन एंड एवरी वुमन वाज अ। वो फिर बताया होगा ना उसमें, ये तो इसमें ऑप्शंस दिए नहीं है, ऑप्शंस दिए होंगे आपको पता चल जाएगा। उस पर करेक्शन किसमें, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे गलती निकाल के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी आपके सोल्यूशंस निकल सकते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, नेक्स्ट वन, योर प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन मी, इज नॉट बिगर देन माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम की जगह आप लगाते हैं माइंड। इट्स समथिंग लाइक दिस, योर प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन माई प्रॉब्लम। अब माई आप प्रॉब्लम के बगैर नहीं लगा सकते, तो उसकी जगह हम लगाते हैं माइंड। योर प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन माइंड, MINE। नेक्स्ट वन, हाँ, बिटवीन इज अ preposition, इट्स ऑलवेज अ preposition, तो उसके साथ आपने उसके बाद सब्जेक्ट कभी नहीं आता। बिटवीन यू एंड, हाँ कौन सा, योर प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन माई प्रॉब्लम, ठीक है। योर प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन माई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम के साथ कंपैरिजन होगा ना, मेरे प्रॉब्लम का मेरे साथ कंपैरिजन होगा या प्रॉब्लम के साथ कंपैरिजन होगा। मैं हूं, अभी समझे, कंपैरिजन शुड बी इक्वल। अब माई प्रॉब्लम की जगह माइंड, because you cannot put my as like separate from problem, so you put mine, MINE। mine का मतलब ही है my problem। आगे को नहीं हो किसका कंपैरिजन किसके साथ, प्रॉब्लम का मेरे साथ कि मेरी प्रॉब्लम के साथ, समझो। गॉट इट? नेक्स्ट वन, between you and me there are very few secrets, you can say there are very few secrets between you and me। you and me, between क्या है, preposition है, preposition के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फॉर्म नहीं आता, तो आई की जगह मी, बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट, हाँ, एंजॉय के बाद आपको ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, यू नीड एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। अब दो तरीके हैं, या तो आप कहोगे ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द कॉन्सर्ट यस्टरडे, कि उसने अपने आप को एंजॉय किया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, या ही एंजॉयड द कॉन्सर्ट यस्टरडे, वी एंजॉयड द म्यूजिक, यू नो, दे एंजॉयड द फूड, somebody enjoyed the movie। So enjoy के बाद you cannot say at, you have to use direct object। He enjoyed himself at the concert, yeah, he enjoyed the concert yesterday। Is that clear everyone? दोनों आ सकते। Next one, he himself hurt during the race, so it has to be a reflexive pronoun। He hurt himself during the race, he hurt himself during the race। My friend a writer has sent me 3 stories of her के साथ stories, stories noun तो her stories, but stories of hers, noun के बगैर आपने क्या लगाना है, hers। her सिर्फ noun के साथ आता है, या the story is hers। समझ आया? जब ये नाउन के बगैर होगा तो ये फॉर्म आती है, हर्स वाली। ये मैंने कल टेबल बताया था ना, हर, हर्स, योर, योर्स, माई, माइन। तो माई कहाँ पे, योर कहाँ पे, वो नाउन के साथ, लेकिन माइन, योर्स, हर्स वो नाउन के बगैर। इज इट क्लियर? राइट, now we have got option wale questions, let you take it as your homework, and there are some other questions also which are without options, उसमें भी ऐसे ही आपको errors देखने, this will be your homework, ठीक है। tomorrow first thing I'll give you answers to these questions, but provided you come having done it, इसको try करना सारे questions को, and tomorrow I'll give you answers, then we'll go to the next topic which is prepositions। next topic will be prepositions। okay guys, that's it for today।